भारत के एक चयनित अंतरिक्ष यात्री हैं। इसके अलावा मिशन स्पेशलिस्ट होंगे स्वाल्ज उजनास्की, जो पोलैंड के रहने वाले हैं, और मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर टिबोर कूप, जो हंगरी के रहने वाले हैं। ये लोग इस मिशन का हिस्सा हैं। इस मिशन की अवधि 14 दिन की होगी, लेकिन भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाला पहला भारतीय होगा। और शुभांशु शुक्ला ने ये उपलब्धि हासिल की है। और अब से कुछ ही देर बाद 12:01 पर आप देख रहे हैं ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 36, 34 सेकंड का समय, 33। आप एक काउंटडाउन गिनते जाइए और नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी ऊंची उड़ान है। शुभांशु शुक्ला इस उड़ान का हिस्सा है और उन्होंने पूरे देश को विश्व में एक बहुत बड़ा गौरव दिलाया है। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा है और 10 सेकंड का वक्त रह चुका है। 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये मिशन अब लॉन्च हो चुका है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है भारत के लिए, बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये एक इतिहास रचा जा रहा है। SpaceX क्रू ड्रैगन फाल्कन 9 रॉकेट के साथ into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon headed to the International Space Station. तो नासा से आप सुन रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भर चुका है ये क्रू ड्रैगन फाल्कन 9 रॉकेट। Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. तो भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण आपको नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां से इस मिशन की शुरुआत हुई है, उड़ान भरी है। और भारत के लिए ये बेहद गर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि है। The Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact show abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. तो ये Now, नासा at this कैनेडी point, we are स्पेस just सेंटर about से 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing throttle. for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. तो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हो चुका है। सक्सेसफुल लॉन्च इसका हुआ है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला की ये बहुत बड़ी Here we उड़ान have है। confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown.
confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. तो आप Right इस now, second ड्रैगन क्रू stage के अंदर just की a little तस्वीरें bit more देख रहे than हैं इस 1G. वक्त, और ये There's so चार much अंतरिक्ष propellant that even with a वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं जो इस 220,000 pound ड्रैगन thrust क्रू engine के takes a while अंदर before the हैं। G-loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. All right, Dragon, SpaceX, nominal trajectory. words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now, our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now, for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn Stage 1 entry burn startup. that we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS Dragon safe. copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. तो आप देख रहे हैं ये लॉन्च हो चुका है मिशन, और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और आप जो बगल में तस्वीरें देख रहे हैं, ये शुभांशु शुक्ला के माता पिता की तस्वीरें हैं, जो भावुक भी हुए जब इसे लॉन्च किया गया। और भारत के लिए ये बेहद गर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, और ये इतिहास उन्होंने रचा है। 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय
और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला की मम्मी देख रहे हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु, और लखनऊ में ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। साल 2006 में एयरफोर्स ज्वाइन किया। शुभांशु शुक्ला सुखोई 30 जैसा फाइटर विमान उड़ा चुके हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों की उड़ान का अनुभव है। 14 दिनों तक अब एक्सियोम मिशन। सुनिए उनके पिताजी कुछ कह रहे हैं। तो उनके माता पिता हैं। शुभांशु के स्कूल में आज खुशियों का माहौल है, जिस स्कूल में वो पढ़े लिखे, और आज उन्होंने कितना बड़ा इतिहास रचा है, कितने गर्व की बात उनके माता पिता के लिए है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के लिए भी बहुत बड़े गर्व का क्षण है, ऐतिहासिक उपलब्धि इसे कहा जाएगा, क्योंकि इस मिशन के जरिए भारत ना सिर्फ वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है। देखिए ये अंदर की तस्वीर है उस ड्रैगन क्रू जो ये क्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट में ये लोग गए हैं, जिस स्पेस क्राफ्ट में, माफ कीजिए, जिस स्पेस क्राफ्ट में ये लोग मौजूद हैं। 4 इसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी एक हैं पायलट के तौर पर, और ऐसे में उनकी अंदर की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सियोम 4 ये एक मिशन है। इस मिशन के दौरान लगभग 60 ऐसे कुछ प्रयोग हैं जो किए जाएंगे अंतरिक्ष से जुड़े हुए, और जिसमें से कुछ वैज्ञानिक प्रयोग भारत ने भी सुझाए हैं, भारत के वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा अपने अपने देशों के छात्रों और शिक्षकों से भी जो सुझाव लिए गए हैं। ये एक स्टडी है स्पेस स्टेशन की, अंतरिक्ष की स्टडी के लिए एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया है, और शुभांशु शुक्ला इस मिशन के महत्वपूर्ण अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, और इसीलिए भारत के लिए ये ऐतिहासिक है। आप देखिए उनके घर वाले यहाँ मौजूद हैं, उनकी मम्मी हैं। जाहिर सी बात है अपने बेटे की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए वो भावुक हो रही हैं, और आज जिस स्कूल में शुभांशु शुक्ला पढ़े हैं, जिनमें उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वहाँ पर भी गर्व का माहौल होगा। शुभांशु शुक्ला के माता पिता और लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं शुभांशु शुक्ला, और एक तरफ उनके परिवार की तस्वीरें और दूसरी उनके स्पेस क्राफ्ट के अंदर वो मौजूद हैं, और वहाँ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये स्पेस क्राफ्ट अब उड़ान भर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने हैं शुभांशु शुक्ला। और जैसे कि मैं बता रही थी कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत न सिर्फ वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है, बल्कि पहली बार इसरो के 7 वैज्ञानिक का प्रयोग भी अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जाएंगे। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करने हैं ऊपर जाकर, स्पेस स्टेशन में जाके अंतरिक्ष की जो स्टडी करनी है, 60 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किए जाएंगे, उसमें से 7 भारत के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित हैं। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुभांशु शुक्ला का चयन और उनका अंतरिक्ष में जाना देश के लिए विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में एक बहुत बड़े और एक नए युग की शुरुआत के तौर पर हम कह सकते हैं। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस तरह से स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं, और इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। और ये भारत का विजय घोष से कम नहीं है। आप देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला के परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, उनके माता पिता हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और हर कोई यहाँ पर खुश है। ये मिशन अब लॉन्च हो चुका है, एक्सियोम 4 मिशन, और एक्सियोम 4 मिशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट इस मिशन के दौरान किए जाएंगे। तस्वीरें देख रहे हैं आप, उनके माता पिता जो गर्व से लबरेज हैं, खुशी से लबरेज हैं, और 14 दिनों का ये पूरा टेन्योर है, 14 दिनों का ये अंतरिक्ष का सफ़र है जो तय करेंगे। और कल भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये ड्रैगन क्रू स्पेसक्राफ्ट लैंड डॉकिंग करेगा। बड़ी बात है, लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
और एक्सियोम 4 मिशन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ये एक भेजा गया है, इसका अगर जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में अगर जिक्र किया जाए तो इसमें लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग होंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट होंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, जिसमें से 7 भारत के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित हैं, जिसमें लाइफ साइंस, चिकित्सा, माइक्रोग्रेविटी में जैविक परिवर्तन और कई नई तकनीकों में परीक्षण। और इस बीच हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर हैं सचिन भांबा जी, वो जुड़ चुके हैं। सचिन भांबा जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और क्योंकि आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं और इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई सभी भारतीयों के साथ, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं आज का ये दिन? देखिए, आज का दिन बहुत ही खास दिन है। मतलब मैं पहले तो सबसे पहले सभी भारतीयों को इस बात की बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक स्पेस एरा भारत में शुरू हुआ। सबसे पहले इसरो ने ऐसे जबरदस्त कारनामे करके दिखाए और फिर हमने अपना अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का प्रोग्राम गगनयान लॉन्च किया। मैं सभी भारतीयों को बता दूं कि आज का दिन बहुत खास है। ये तो है ही कि 40 साल के बाद कोई हिंदुस्तानी दोबारा स्पेस में जा रहा है और शुभांशु जी पहले ऐसे इंडियन बनेंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ बारीकियां समझते हैं जी। गगनयान में हमारे को डॉकिंग करनी है। भारत ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। तो पहली बार हमारा कोई पायलट अपने मॉड्यूल को, यानी ड्रैगन क्रू मॉड्यूल को जाकर के डॉकिंग करेगा। सो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि भारत अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अंतरिक्ष में एक सुपर पावर बनने की तरफ, अपना एक पहचान बनाने की तरफ। उसमें एक बहुत ही खास ये मुकाम है जहां पे बिल्कुल है। हमारा अपना एक खाने पहनने का एक तरीका है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करने वाले हैं वो ज्यादातर कैसे हम लोग अंतरिक्ष में सरवाइव करेंगे, खाने में मिलने वाले बैक्टीरिया पे, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है वो हमारा खाना जैसे पचाता है, उन सारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए हैं। 3 एक्सपेरिमेंट आप मानिए जो शुभांशु जी करेंगे, उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट खाने पे हैं। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें शुभांशु जी खुद अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल्स को रिएक्शन देंगे, यानी माइक्रोग्रेविटी में हमारा ब्रेन कैसे लेता है, कैसे रिएक्शन देता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें शुभांशु जी वो स्पेस में करेंगे और उनका एक काउंटर पार्ट जो पृथ्वी पे होगा उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। इनफैक्ट बाकी के जो भी 60 एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादातर हमारी जो स्थिति रहती है एक्सपोजर होने के बाद माइक्रोग्रेविटी को, गामा रेस को, क्योंकि आप सब जानते हैं अंतरिक्ष में वो कवच नहीं है जो हमें अपने एटमॉस्फेयर से नेचुरली मिलता है। तो खाना, हमारे काम करने की क्षमता, हमारे माइक्रो मसल्स की क्षमता, हमारा खाना पचाने की क्षमता, हमारी साइकोलॉजी पे उसका इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जब हम पृथ्वी पे भी जब हमारी मूल जरूरतों से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर छोटी छोटी ऐसी चीजों पे जो हमें काम करने की कार्य क्षमता देती हैं उन पे एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाते हैं। यानी सचिन जी, हम इजी लैंग्वेज में अगर हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाना हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन जिसका हिस्सा है शुभांशु शुक्ला, वो स्पेस में धरती से बाहर क्या जीवन है, ये कह सकते हैं हम? देखिए, धरती से बाहर जीवन तो ऑलरेडी हम लोग मानते हैं कि है ही। अब हम जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप है। अगर हमें खुद जाकर के धरती के बाहर रहना होगा तो आप यकीन माने कि हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद के बिना नहीं जी सकते। तो हम एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो इससे आगे बढ़ के कर रहे हैं। जीवन को तो हम मानते ही हैं कि है। अब हम इसके साथ यहाँ से टार्डिग्रेड्स, माइक्रो बैक्टीरिया जो अपने साथ लेके गए हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो हम खुद एक्चुअली रहने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हमारे दर्शक सरल भाषा में इस बात को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि इंसान ने धरती के बाहर रहने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। हम अपने जो आने वाले 2047 तक, हमारे जो 100 साल पूरे होने तक जो हमने अपने से वादे किए हैं उनको पूरा करने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पे हम मून पे कॉलोनी बना के रहना चाहते हैं।
हालांकि हम सब जानते हैं कि एलन मस्क तो मंगल पे जाना चाहते हैं, लेकिन भारत अभी चांद पे बहुत फोकस्ड है और चांद पे कभी हमें इंसान रखने पड़ जाएं उसकी ये तैयारी है। लेकिन उससे पहला स्टेप कि भारत अपने आप को रेडी करे इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, उसकी तो ये बहुत ही बिल्कुल। आप देखेंगे कि इन मिशन के सफल होते ही गगनयान की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। बिल्कुल। और हम लोग बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे भारत शायद अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों में पहल करेगा। जैसे अंटार्कटिका में हमारी एक टीम ने पहल की है, ऐसी शायद भारत पहली पहल करेगा जहां पे पहली बार कहीं कॉलोनी बसा करके लोग रहेंगे, तो हम उसकी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, तो इस लिहाज से ये एक्सियोम 4 मिशन अपने आप में बेहद बेहद अहम है। लगभग 60 एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, जिसमें से भारत के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। अब जैसा मैंने कहा कि हमारे एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही फोकस्ड एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कलेक्टिव रिसर्च में डाटा में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो हमारे पास काफी रिसर्च है। लेकिन अभी जो 7 एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, बल्कि जो बाकी के 7 एक्सपेरिमेंट हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स भी इसी बात पे फोकस्ड हैं कि कल को अगर हमें जाकर के अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में रखना पड़ता है, जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अलग अलग देशों के 6 लोग पूरे 6-6 महीने रहते हैं। अभी सुनीता विलियम्स वहां थोड़े दिनों के लिए फंस गई थी और फिर वापिस आई, तो ऑलरेडी इंसान स्पेस में रह रहा है। लेकिन भारत, हंगरी, हमारे इन देशों, पोलैंड, इन देशों के लिए ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां पे हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमको अगर अपने लोगों को, अपने भारतीयों को अगर स्पेस में रहना पड़े तो हमने वो बेसिक रिसर्चेस कर रखी हो। हमारे मसल्स, माइक्रो मसल्स काम कैसे करते हैं माइक्रो ग्रेविटी में, उसका टेस्ट कर रखा हो। हमारे पेट का बैक्टीरिया कैसे काम करता है, अगर हमने अनाज उगाना हो तो वहां पे जो हमारे बीज हैं वो बिना ग्रेविटी के कैसे काम करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। ये लाइफ साइंसेस की स्टडी और बायोलॉजी, माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजी किस तरह से एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, ये बड़े माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किए जाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि वाकई बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेकिन सचिन जी, जरा ये भी समझाइए कि जिस तरह से ये स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन क्रू फाल्कन 9 रॉकेट जिसने उड़ान भरी है, कैसे, कितने चरणों में, क्या इसकी जर्नी रहेगी जब ये डॉकिंग करेगा ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उस बीच कितना लंबा सफर है, भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे पहुंचेगा, इस बीच क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, क्या कुछ परिस्थितियां रह सकती हैं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब भी रॉकेट में कोई आदमी बैठ के उड़ता है तो सबसे खतरनाक समय, जैसे हवाई जहाज के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग का समय होता है, वही खतरनाक समय रॉकेट के लिए होता है। तो जो खतरनाक टाइम था वो निकल चुका है, जब हमने एक्चुअली इसको इतनी स्पीड देनी थी कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की स्पीड पे पहुंचे और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकल करके अपनी कक्षा में जा सके। आप अगर अभी देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, जो 1 मीटर सा नीचे आपको जैसे आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर दिखता है, उसमें आप देखें तो स्टार्टअप की एक स्टेज है, लिफ्ट ऑफ की एक स्टेज है, मैक्स क्यू। जब लिफ्ट ऑफ हो जाता है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा रॉकेट एयरबोर्न है और हमारे कंट्रोल में है, तो हम कहते हैं लिफ्ट ऑफ इज सक्सेसफुल, उठ गया। तो हमने देखा कि वो सक्सेसफुल हुआ। फिर अगली स्टेज आप देख रहे थे, उसमें मैक्स क्यू की स्टेज थी। तो जैसे मैं किसी चीज को धक्का मारूं किसी फोर्स के अगेंस्ट, तो अंतरिक्ष के ऊपर जो वातावरण है उसके अगेंस्ट एक मेटल की बॉडी खुद को फोर्स कर रही थी, तो उस पर जो फोर्स पड़ रहा था उसका मैक्सिमम दबाव मैक्स क्यू पे था। और इसी स्टेज के ऊपर अगर रॉकेट कोई डिसइंटीग्रेट होना होता है तो हो जाता है, और वो सबसे ही खतरनाक स्टेज थी। जो मुझे दिखता है कि उनकी माँ की आंख में जो आंसू हैं, वो जो भावुकता है वो सच में सत्य है। आप मान के चलिए कि आप एक रॉकेट बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं, जिस बॉम्ब को कंट्रोल करके कंटिन्यूअसली फायर किया जा रहा है और आपको स्पीड दिलाई जा रही है, क्योंकि हमें पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से निकलने तभी देती है जब हम एक पर्टिकुलर स्पीड, एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लें। अब आपने इतनी तेजी से एक रॉकेट को फायर कर दिया और फिर उसको बड़ा तेज से निकाल दिया। अब उसको कंट्रोल करके आप सोचिए, अगर एक चीज जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, दूसरी चीज जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, अगर इनमें थोड़ा भी फर्क हुआ तो जब आपस में टकराएंगी तो कितना जबरदस्त कोलैप्स होगा। सो अगली जो स्टेज होगी, जो देखने वाली स्टेज होगी, जो ऐतिहासिक होगी, सच में ऐतिहासिक, बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्टेज होगी, जब हम
डॉकिंग करेंगे, यानी जो इसमें कैप्सूल है जिसमें अब हमारे एस्ट्रोनॉट बैठे हुए दिख रहे हैं, वो कैप्सूल जब अपनी मेन बॉडी से अलग होकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक करेगा, वो सबसे ज्यादा देखने योग्य और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी वैज्ञानिक। Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. So how do you expect Gaganyaan 1 that is slated to launch in 2027, the fact that Indian astronaut Shukla is there? No, actually the 4 astronauts had already been undergoing training for Gaganyaan. One of them was Shubhanshu Shukla, the other one was Group Captain Nair, Group Captain Angad, Group Captain Krishna, and then suddenly this happened actually, and I'm glad to say that the suggestion and the offer to have an Indian astronaut on board came from their side when Prime Minister Modi was on a visit to DC, Washington DC. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उनके अंडर आता है, और ऐसे में जो ये उपलब्धि है भारत की, इसको लेकर उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें कही। और शुभांशु शुक्ला की माता क्या कह रही हैं, उनकी मम्मी, क्योंकि बहुत ज्यादा भावुक भी हैं, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा। और अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये उड़ान भर चुका है, और जैसे कि हमारे साथ सचिन भांबा जी जुड़े हुए थे, एस्ट्रोनॉमर थे। सचिन भांबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि अब नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि जब हम डॉकिंग करेंगे, वो एक वाकई ऐतिहासिक पल होगा देखने के लिए, समझने के लिए। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स शुरू होंगे, और जैसा कि एस्ट्रोनॉमर ने बताया, सचिन भांबा जी ने बताया कि बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, लाइफ तो है, लेकिन अब हमें तैयारी करनी है कि किस तरह से जीवन अंतरिक्ष पर यापन किया जा सकता है भी या नहीं। ये तमाम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं। 14 दिनों की ये पूरी टेन्योर रहेगा, और कल भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुभांशु शुक्ला डॉकिंग करेंगे और लैंड करेंगे, और वो भी एक ऐतिहासिक पल होगा। लगातार इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी उपलब्धि पर हमारी नजर बनी हुई है, और खबरों का सिलसिला इसी तरह न्यूज़ 18 JKLH पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।